آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ این سی رہنما تنویر صادق کا بیان، بولے سال 2016 کے پہلے 30 دنوں میں 13 لاکھ پیلٹ گولیاں چلائی گئی، 7,000 لوگ زخمی ہوئے، یہ سب پی ڈی پی حکومت کے ہیلنگ ٹچ کے وعدے کے نتیجے میں ہوا۔ پی ڈی پی رہنما التجا مفتی کے خلاف سائبر پولیس کا سخت قدم، سید علی شاہ گیلانی کی ویڈیو شیئر کرنے پر ایف آئی آر درج، یو اے پی اے کے تحت الزامات اور سیاسی تنازعات تیز۔ ایران کا دو ٹوک موقف، اسماعیل باغئی نے جی سی سی کے الزامات کیے رد، امریکہ اسرائیل حملوں میں کچھ گلف ممالک کو شریک جرم دیا قرار، ہارمز پر دفاعی اقدامات کا دفاع۔ ٹرمپ نے ایران کو ہار مان لو کا دیا پیغام، محمد باقر غالیباف کا جواب، بولے امریکہ کا معاشی دباؤ ناکام، ہارمز تناؤ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور لبنان پر اسرائیلی حملے میں 9 ہلاک۔ جموں سے سری نگر تک پہلی سیدھی وندے بھارت ٹرین کا آغاز، کشمیر ریل رابطے کا تاریخی مرحلہ مکمل۔ اور این سی سربراہ فاروق عبداللہ نے اب بہت ہو گیا کہہ کر دیا سخت پیغام، پاکستان سے کشمیر میں تشدد ختم کرنے اور امن کی راہ اختیار کرنے کی اپیل۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ سینسوکیزر، جو کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا بھروسے مند برانڈ کرنے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق کی جانب سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر سخت الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سال 2016 کے بے چین حالات کے دوران ہی جب حکومت محبوبہ مفتی کے پاس تھی تو صرف پہلے 30 دنوں میں ہی تقریباً 13 لاکھ پیلٹ گولیاں اور 4,000 کے قریب کارتوس استعمال کیے گئے، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 7,000 افراد زخمی ہوئے۔ ان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسی عرصے میں قریباً 10,000 لوگ پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جو کہ ان کے مطابق حکومتی سختی کی واضح مثال تھا۔ تنویر صادق کی جانب سے مزید کہا گیا کہ لوگوں کو امید تھی کہ پی ڈی پی اپنے سیاست میں بہتری لائے گی، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ یہ بیانات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جبکہ سیاسی تنازعہ دوبارہ تیز ہو گیا۔ جموں و کشمیر اسمبلی میں ایک آر ٹی آئی کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ راجیہ سبھا کے انتخابات کے دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیا، جس پر کہ مخالف رہنما پارٹی کی سیاسی تیاری اور انتخابی رویے پر سوال کھڑے کر رہی ہیں۔ تنویر صادق کی جانب سے قومی سطح پر بھی پی ڈی پی کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ ٹرپل طلاق قانون پر ووٹنگ کے دوران پارٹی نے حصہ ہی نہیں لیا، جو کہ ان کے مطابق اہم مسائل پر غیر واضح موقف کی نشانی تھا۔ تاریخی حوالوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حول واقعہ کے بعد ہی مرحوم مفتی محمد سید نے اس وقت کے گورنر جگموہن کی تعریف کی تھی، جو کہ ان کے مطابق عوام کے جذبات کے برعکس تھا۔ حال ہی کے ایک تنازع پر بات چیت کرتے ہوئے تنویر صادق نے ان افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی بھی مذمت کی جو کہ سید علی شاہ گیلانی کی اردو زبان سے متعلق ویڈیو شیئر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی ویڈیوز کا کوئی بھی خاص اثر نہیں ہوتا اور اس پر قانونی کارروائی کی ضرورت پر سوال بھی کھڑا کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے التجا مفتی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی شیئر کریں، جس میں ان کے مطابق اردو زبان کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری پی ڈی پی پر ڈالی گئی تھی۔ تنویر صادق نے یہ تمام باتیں سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہیں۔ کشمیر میں سائبر پولیس نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی اور کچھ اور افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، جہاں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ایسا شخص کی تعریف کر دی یا اسے نمایاں کیا جو کہ ایک غیر قانونی تنظیم سے جڑا ہوا رہا اور جس پر یو اے پی اے کے تحت پابندی رہی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جبکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سید علی شاہ گیلانی کی پرانی ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ اردو زبان کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی پوسٹ میں التجا مفتی نے کہا کہ وہ گیلانی کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتی، لیکن اردو کے حوالے سے ان کی بات اہم لگتی ہے اور دیکھنے کے قابل بھی ہے۔ اس پوسٹ کے بعد ہی سوشل میڈیا پر سخت تنقید دیکھنے کو ملی، جہاں کئی لوگوں نے ان پر الغاو پسندی کو نرم انداز میں پیش کرنے کا الزام لگایا۔ سید علی شاہ گیلانی، جو کہ حریت کانفرنس سے جڑے رہے، اکثر الغاو اور پاکستان کے حق میں بیانات کی وجہ سے مشہور رہے ہیں اور ان سے متعلق کئی تنظیموں پر مختلف دفعہ پابندی بھی لگ چکی ہے۔ وہیں اس سلسلے میں سری نگر کے سائبر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 11/2026 درج کی گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر یہ معاملہ بھارتیہ نیائی سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت آتا ہے، جن میں دفعہ 152 شامل ہے، جو کہ ملک کی وحدت اور سلامت پر بھی اثر ڈالنے والی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔
है, जबकि दफा 196 एक मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान नफरत फैलाने से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा दफा 353 के तहत भी ऐसे बयानात या अफवाहों पर भी कार्रवाई होती है जो खौफ, बेचैनी या अमन आम को भी मुतासिर कर सकती हैं। पुलिस ने अवाम को तनबीह दी है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी गैरकानूनी मवाद ना बनाएं या फिर शेयर करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बीजेपी के रहनुमा साजिद यूसुफ शाह की जानिब से इल्तिजा मुफ्ती के बयान के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया था। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि ऐसे अफराद की वीडियो शेयर करना जो कि कश्मीर में खून खराबे से जुड़े हुए हैं और अलगाव पसंदी को फरोग देते हैं, ये एक संजीदा मामला है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आम लोग अगर इससे कुछ भी करें या तो उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सियासतदानों के साथ निजाम नरम रवैया क्यों रखता है। ये FIR उस वक्त दर्ज की गई जब इल्तिजा मुफ्ती पहले ही जम्मू और कश्मीर हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रही है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कुछ नौकरियों के लिए उर्दू जुबान की शर्त खत्म कर दी गई, जिससे उन्होंने इलाकाई जुबानी पहचान पर हमला करार दिया। दूसरी तरफ से कश्मीरी पंडित तंजीम और कुछ मकामी आवाजें भी इस मामले पर दोहरे मियार का इल्जाम लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि आम शहरी अगर ऐसा मवाद शेयर करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, वो भी जल्द से जल्द, जबकि सियासी अफराद के लिए रवैया मुख्तलिफ होता है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बयान को सख्ती से रद्द करते हुए उसे बेबुनियाद और गैर हकीकी करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात और उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करता रहा, लेकिन कुछ GCC रकुन ममालिक ने भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ की गई हमलावरी में भी गैर कानूनी तौर पर हिस्सा लिया। बागई के मुताबिक इन ममालिक ने पहले यकीन दिलाया था कि वो अपनी सरजमी और सहूलियात ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ना सिर्फ वो इसे रोक ना सके बल्कि इस मुहिम का हिस्सा भी बन गई। उन्होंने मजीद कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 3314 के मुताबिक ये ममालिक अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी हद में शरीक समझे जा सकते हैं। उन्होंने GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतल्लिक बयान को भी रद्द कर दिया और कहा है कि ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर अपनी दिफा के लिए कानूनी और मुनासिब इकदाम किए ताकि अपनी खुद मुख्तारी, सरहदी सलामती और समंदरी गुजरगाह की हिफाजत की जा सके। उनका यह कहना है कि ईरान के ये तमाम इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हैं। बागई ने यह भी कहा कि ईरान हमेशा इलाकाई ममालिक के दरमियान भरोसा पैदा करने में आगे रहा है और हमेशा तफर्रुक पैदा करने वाली सोच की मुखालफत करता रहा। उन्होंने GCC ममालिक से मुतालबा किया है कि वो ईरान का भरोसा जीतने के लिए अमली कदम उठाएं, ईरान को पहुंचाए गए नुकसान का अजाला करें और ईरान के दुश्मनों के साथ किसी किस्म का ताउन बंद कर दें। ये सारा तनाज़ा उस वक्त उभर कर आया है जब 28 फरवरी को उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी और कई आला फौजी अफसरान के कत्ल के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान की फौज ने 40 दिन तक मुसलसल जवाबी हमले किए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की बंदरगाहों पर लगाई गई समंदरी पाबंदियां कामयाब रही और तेहरान से कहा है कि अब वो बस हार मान ले। दूसरी तरफ से इसराइल के जनूबी लेबनान पर हवाई हमलों में कम से कम 9 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है, जिससे कि इलाके में खौफ और बेचैनी मजीद बढ़ गई है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ की जानिब से अमेरिका की माशी दबाव की पॉलिसी को रद्द करते हुए कहा गया है कि ये ईरान को झुका नहीं सकती, जबकि ईरानी फौज ने बयान दिया है कि अब तक जो भी सब्र दिखाया गया वो सिर्फ इसलिए था कि सिफारती कोशिशों को मौका दिया जा सके। इस तमाम सूरत हाल के सबसे बड़े असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखने को मिल रहे हैं, जहां तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें $120 पर बैरल से ज्यादा हो चुकी है। इसका असर सीधा आवाम पर पड़ रहा है। खासतौर पर अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4 साल की बुनियादी तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक अगर ये तनाव जारी रहा तो फिर माशी सूरत हाल मजीद सख्त हो सकती है और दुनिया भर के बाजार भी इससे मुतासिर होंगे। जम्मू और कश्मीर की तारीख में आज एक नया और अहम बाब का इजाफा हो गया जब रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने जम्मू से श्रीनगर के दरमियान चलने वाली 20 कोच पर मुश्तमिल वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडा दिखाकर रवाना किया। ये पहली दफा है कि जम्मू और श्रीनगर, जो कि रियासत के 2 अहम मरकज हैं, सीधी रेल खिदमत के जरिए आपस में जुड़ गए हैं। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर दौलत बराए वजीर आजम दफ्तर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे थे, जिन्होंने इस तारीखी कदम को अवाम के लिए इंतहाई फायदेमंद करार दिया। ये सीधी रेल खिदमत न सिर्फ सफर का वक्त कम करेगी बल्कि सियाहत यानी टूरिज्म को भी फरोग देगी और हर मौसम में जमीनी राब्ते को मजबूत बनाएगी। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा से श्रीनगर तक पहली सीधी ट्रेन का इफ्तिताह किया था, जिससे अब बढ़ाकर जम्मू तवी तक पहुंचा दिया गया है। ये पूरा रेल मंसूबा जो तकरीबन 43,780 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ, वो साल 1990 के दशक के आखिर के शुरू किया गया था, जबकि कश्मीर वादी में पहली मर्तबा ट्रेन अक्टूबर 2008 में चली थी।
जम्मू से उधमपुर तक रेल राब्ता साल 2005 में ही कायम हो गया था, लेकिन पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों की मुश्किल जमीन की वजह से वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ना एक बड़ा चैलेंज बन रहा था, जो कि आखिरकार साल 2025 में मुकम्मल हुआ। ये जदीद वंदे भारत ट्रेन 20 कोचेस पर मुश्तमल है, जो कि जम्मू तवी से श्रीनगर तक 267 किलोमीटर का फासला तय करेगी और इस दौरान सख्त और पहाड़ी इलाकों से गुजरती हुई एक अहम राब्ता फराहम करेगी। अहम बात यह है कि श्रीनगर से भी एक ट्रेन इसी वक्त जम्मू की तरफ रवाना हुई, जो कि 2 तरफा राब्ते की निशानदेही रही। इस खिदमत का बाकायदा आगाज 2 मई से होगा और ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जबकि मंगल के दिन इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं होगी। जम्मू से कटरा के दरमियान इस ट्रेन का तिजारती दौर यानी ट्रायल रन भी पहले कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। गुज़िश्ता 10 सालों में जम्मू और कश्मीर में रेलवे निजाम को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए, जिनमें साल 2014 में उधमपुर कटरा सेक्शन का आगाज, फरवरी 2024 में वादी में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन और साल 2025 के जनवरी में जम्मू रेलवे डिवीजन का कयाम शामिल रहा। इसके साथ ही जम्मू तवी, कटरा, उधमपुर और बड़गाम स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद बुनियादों पर दोबारा तैयार किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि इस पूरे निजाम की रीढ़ की हड्डी है, वो 36 सुरंगों, 119 किलोमीटर लंबी राहों और 943 पुलों पर भी मुश्तमल होगी, जो कि इस मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाती है। वहीं ये रेल राब्ता न सिर्फ तरक्की की नई मिसाल है, बल्कि जम्मू और कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से मजबूत तौर पर जोड़ने वाली एक बड़ी कामयाबी भी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा गया कि अब बहुत हो गया और पाकिस्तान को मशवरा दिया गया कि वो कश्मीर में तशद्दुद का सिलसिला खत्म करें और अमन की तरफ कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में कमी जरूर आई है, लेकिन पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम न करना अब भी तशद्दुद को हवा दे रहा है। 88 साल रहनुमा ने दोनों ममालिक को मशवरा दिया है कि जंग और तशद्दुद का रास्ता छोड़कर अमन और इज्जत के साथ जीने के तरीके तलाश किए जाएं। उन्होंने पहलगाम के बाइसरन मैदान में हुए दहशतगर्दी के वाक़े का जिक्र किया, जहां 26 अफराद हलाक हुए थे और इसे भाईचारे के लिए एक बड़ा झटका करार दिया। लेकिन उनके मुताबिक इस वाक़े के बाद से जम्मू और कश्मीर के लोग खुद सड़कों पर निकले और बगैर किसी दबाव के अपना एहतजाज दर्ज कराया, जो कि पाकिस्तान के लिए वाज़े पैगाम था कि अवाम दहशतगर्दी को रद्द करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दर्द सिर्फ मुतासिर खानदानों तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी अवाम ने इसे महसूस किया और ये भी कहा कि ये हम नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा है कि कश्मीर के लोग, खासतौर पर वादी के लोग, पाकिस्तान को ये पैगाम दे चुके हैं कि तशद्दुद को अब खत्म होना चाहिए और वो कभी भी दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानवर नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं और अब बस करो, इस सिलसिले को यहीं खत्म करो। इसके साथ ही उन्होंने एक और संजीदा मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है और कहा है कि आज के दौर में जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी नहीं, बल्कि नशों की बढ़ती हुई लत है, जो कि मुआशरे के अंदर उसे तबाह कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कुछ मकामी लोग पैसों के लिए इस कारोबार में शामिल हैं और ये भी कहा है कि इसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई दोबारा इसका सोच भी ना सके। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मजहब नशा आवारी की तालीम नहीं देता है और इस बुराई के खिलाफ सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि हर वालिदैन और शहरी को मिलकर काम करना होगा और लड़ना होगा। उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहा है कि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं होती, बल्कि ये उन्हें मजीद बढ़ा देती है। उन्होंने रशिया यूक्रेन जंग और मगरबी एशिया में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि इन जंगों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वहीं ये भी कहा कि यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक भी आज मुश्किलात का शिकार है और अमेरिका खुद भी बेहतरी की सूरत हाल में नहीं। उनका यह भी कहना है कि अगर दुनिया को बेहतर बनना है तो जंग के बजाय अमन को तरजीह देनी होगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।